ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلے سرخیاں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج دوسرے روز بھی ہوئی ہنگامے کی نظر۔ اپوزیشن ممبران منی پور معاملے پر وزیر اعظم کے بیان کی کر رہے تھے مانگ۔ ملازمین اور کارکنان سے متعلق اعداد و شمار، اطلاع و ڈیٹا شیئرنگ سے پوری دنیا کے ممالک بنیں گے بااختیار۔ G20 کے تحت محنت و روزگار کے وزراء کی میٹنگ سے وزیر اعظم کا خطاب۔ وادی کی کئی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے ایک وفد نے LG منوج سنہا سے کی ملاقات۔ سکم صورہ اور بھرتی عمل کے حوالے سے کئی معاملات آئے زیر غور، اور سکم صورہ میں دھوکہ دہی کی بنیاد پر نوکری حاصل کرنے والے 9 افراد کے خلاف کرائم برانچ نے کیا چارج شیٹ داخل۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس جاری ہے اور آج دوسرے روز بھی دونوں ایوانوں کی کارروائی شور و گل اور ہنگامے کی نظر ہوئی۔ آج صبح جیسے ہی لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس، DMK، شیو سینا، ادو گروپ، JDU اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے منی پور معاملے میں ہنگامہ کیا اور کارروائی کو چلنے نہیں دیا۔ ان ممبران نے ویل میں آ کر ہنگامہ کر کے ایوان میں وزیر اعظم کے بیان کی مانگ کی۔ جب شور شرابہ انتہائی نوعیت کا ثابت ہوا تو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کارروائی کو پورے دن کے لیے برخاست کیا۔ دوسری جانب راجیہ سبھا کی کارروائی پہلے دن کے 2:30 بجے تک ملتوی کی گئی اور اس کے بعد کارروائی کو دوبارہ شروع کیا گیا تو اپوزیشن ممبران نے ایک بار پھر ایوان میں ہنگامہ آرائی جاری رکھے اور کارروائی کو چلنے نہیں دیا۔ اس کے بعد چیئرمین نے ایوان کو پورے دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج لوک سبھا کو ایک تحریری جواب میں آگاہ کیا کہ سال 2014 سے جون 2023 کے درمیان 13,75,000 سے زائد ہندوستانی شہریوں نے بھارت کی شہریت کو ترک کیا ہے۔ اعداد و شمار فراہم کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ رواں سال جون مہینے تک ہی 87,000 سے زائد افراد نے بھارت کی شہریت چھوڑ دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں عالمی کام کی جگہوں کو تلاش کرنے والے ہندوستانی شہری نمایاں رہے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے ذاتی سہولیت کی وجہ سے غیر ملکی شہریت اختیار کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی حکومت ان تمام حالات و واقعات سے پوری طرح باخبر ہے اور ان لوگوں کو بھارت کے ساتھ وابستگی رکھنے کے لیے بھی کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش میں بھارت کی صدارت کے تحت G20 کی محنت و روزگار کے وزراء کی میٹنگ سے ورچوئل طور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین اور کارکنان سے متعلق اعداد و شمار، اطلاع و ڈیٹا شیئرنگ سے پوری دنیا کے ممالک بااختیار بنیں گے۔ G20 کو اس سلسلے میں قائدانہ رول ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بہتر ہنرمندی، افرادی قوت کی منصوبہ بندی اور فائدہ مند روزگار سے متعلق پالیسیاں وضع کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ نقل و حرکت کرنے والی افرادی قوت مستقبل میں عالمی سطح پر ایک حقیقت بننے والی ہے، لہذا یہ صحیح معنوں میں عالمی سطح پر ترقی کیے جانے اور ہنرمندی سے ایک دوسرے کو واقف کرائے جانے کا وقت ہے۔ محنت و روزگار کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے بھی میٹنگ سے خطاب کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور پارلیمنٹ کے ممبر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، CPIM کے سینئر لیڈر MY طارق اور PDP کے لیڈر ڈاکٹر محبوب بیگ پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا۔ ان لیڈران نے LG کو سکم صورہ کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسپتال شمالی ہندوستان میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا تھا، لیکن پچھلے کچھ سال کے دوران اس کے اختیارات اور دیگر مراعات کو کم کر کے اسپتال کی پہچان کو زک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ان لیڈران نے کہا کہ سکمز کو اس وقت پوری طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسامیوں کی بھرتی کے حوالے سے کہا گیا کہ کافی وقت سے اسپتال میں ڈاکٹروں کی بھرتی کا عمل شروع نہیں کیا گیا، جو مریضوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر نے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں جموں کشمیر ڈرگس اینڈ فوڈ کنٹرول کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ان اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ جموں کشمیر میں اعلیٰ معیار کی ادویات اور خوردنی اشیاء کس طرح سے ہر ایک شہری تک پہنچائے جائے۔ مشیر موصوف نے ادویات فراہم کرنے والی ایجنسیوں سے کہا کہ وہ نشاور ادویات کی فراہمی پر قدغن لگانے کے لیے انتظامات کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے متعلقہ محکمے کو ہدایت دی کہ وہ معیاری ادویات کی چیکنگ کے لیے اپنے اسکواڈوں کو متحرک کریں۔ سالانہ امرناتھ یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے اور یاترا کے 21ویں دن یاتریوں کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ خراب موسم کے باوجود آج 12,000 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ دریں اثنا آج صبح جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 4,675 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا وادی کی طرف روانہ ہوا۔ یاتریوں کے اس قافلے میں 3,400 مرد، 1,189 خواتین، 16 بچے اور 67 سادھو شامل ہیں۔ یاترا کی اب تک کی مدت کے دوران 30 یاتری قدرتی طور فوت ہوئے، جبکہ ایک یاتری پہاڑی سے پتھر گرانے کی وجہ سے ہلاک ہوا۔
62 दिनों पर मुश्तमिल सालाना अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ ही इख्तिताम पजीर होगी। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले लाखों यात्री पहलगाम के नूनवन बेस कैंप पर सफाई सुथराई के इंतजाम से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इन यात्रियों का कहना है कि न सिर्फ कैंप एरिया में रोजाना की बुनियादों पर सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि बैतुल खला और दूसरी जगहों को भी साफ शफाफ रखा जा रहा है। इन यात्रियों ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों की लगन और तनदेही से काम करने की वजह से हर रोज निकलने वाले कूड़ा करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने का काम भी अंजाम दिया जा रहा है। कि वो बहुत ही सुंदर है, अच्छी साफ सफाई व्यवस्था है। अभी हम नहाने के लिए आए हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर हमने जो सैनिटेशन के लिए रखा है, जो हमारे पास जो यहाँ पर टॉयलेट्स है, वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स जो श्राइन बोर्ड के हैं उसके लिए हमारे रूरल डेवलपमेंट ने जो हायर की है एजेंसी ग्रेविटी मैनेजमेंट, वो टॉयलेट्स का मतलब सफाई साफ़ सुथरा रखने के लिए उसमें जो हमारे जो वर्कर्स है वो साफ़ करें और जो कैंप का जो बाकी जो कचरा है वो साफ़ करते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने आज डीसी श्रीनगर एजाज असद और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अथर आमिर खान के हमरा जड़ीबली इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि इस मुतबर्रिक महीने में इलाके में सेहत व सफाई, ट्रैफिक की नकल हमल, हिफाजती इंतजामात और दीगर जरूरी सर्विसेज बहम रखी जाए। उन्होंने कहा कि अज़ादारों की सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने सिक्किम मिसोरा में धोखाधड़ी की बुनियाद पर नौकरी हासिल करने वाले 9 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक्स विंग श्रीनगर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सिक्किम मिसोरा के डायरेक्टर से एक शिकायत मौसूल हुई थी कि कुछ लोग धोखाधड़ी और अपनी असनाद गलत तरीके से बनवा कर इदारे में नौकरी हासिल करने में कामयाब हासिल हुए हैं। इनमें शकूर अहमद तातरे साकिन पूनीपुरा कुलगाम, मोहम्मद शाहिद मुर्तजा वापुरा कुलगाम, शाजिया हसन कोलपुरा कुलगाम, मुदस्सिर बशीर सोफी साकिन नूरबाग कुलगाम, शमीम अहमद नायक बनी मोहल्ला कुलगाम शामिल है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि इन लोगों ने इदारे में जाली असनाद की बुनियाद पर बतौर नर्सिंग ऑर्डरलीज नौकरी हासिल की है, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से छानबीन के दौरान पाया गया है कि इन लोगों की तालीमी काबिलियत और इनकी तारीख पैदाइश की असनाद जाली है। इस शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने पाया कि इन अफराद के अलावा भी कई दूसरे लोग जाली असनाद की बुनियाद पर सिक्किम मिसोरा में नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जिन सभी लोगों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने श्रीनगर की एक अदालत में मुख्तलिफ दफात के तहत चार्जशीट पेश किया है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सारिश असगर ने आज मीरास महल वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस वेबसाइट की अफादियत के बारे में डीसी मौसूफा ने कहा कि इस इकदाम से मीरास महल म्यूजियम में रखे हुए अहम सकाफती अशिया और दीगर नवादरात के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी हासिल होगी। मीरास महल सन 2001 में इलाके की एक मशहूर माहिर तालीम मरहुमा अतीका बानो ने कायम किया था। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज तापरक्रीरी पट्टन का दौरा करते हुए सीड मल्टीप्लिकेशन फॉरम और दूसरी ज़रूरी सरगर्मियों का जायजा लिया। नाज़िम ज़राअत ने माहिरीन और महकमे के अमले की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इम्तिहानात के इनेकाद से मुत्तलिक कौमी एजेंसी ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया है। जिन तलबा ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी वो एजेंसी की वेबसाइट पर अपने नताइज चेक कर सकते हैं। आकाशवाणी दिल्ली आज से G20 प्रोग्रामों की मेजबानी कर रहा है। ये सिलसिला 6 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ तालीमी, सकाफती, अदबी और फनी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। 50 दिन तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ फनकार शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल वसुधा गुप्ता ने इब्तिदाई प्रोग्राम की सदारत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा की हिदायत पर आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांपोर में एक सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर अब्दुल कयूम नदवी ने असातिज़ा, तलबा और दीगर अफसरान को ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान वोट और चुनाव की अहमियत से बाखबर किया। उन्होंने इन ट्रेनिंग प्रोग्रामों में शिरकत करने और इनसे इस्तेफादा करने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने हमेशा इस पार्टी के साथ अपनी बेलोस वाबस्तगी रखी है। इन बातों का इजहार शेख मुस्तफा कमाल ने पार्टी सदर दफ्तर पर कारकुनों और अहदेदारों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हद पे तनकीद बनाते हुए कहा कि इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई ने अवाम को गूनागू मुश्किलात में मुब्तला किया है।
बम्बई सोपोर से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म मिसबाह सुल्तानी ने एक स्मार्ट ड्रग डिटेक्टर प्रोटोटाइप इजाद किया है जिससे नशा करने वाले अफराद का बर वक्त पता चल सके। मिसबाह को इस इजाद का ख्याल उस वक्त आया जब इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए एक मुहिम का आगाज करते हुए तालीमी इदारों में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए। मिसबाह इस प्रोजेक्ट पर पिछले 1 साल से मसरूफ है। उनका कहना है कि अगर इस आले को स्कूलों और कॉलेजेस में नस्ब किया जाए तो नशा करने वालों का पता फिलफौर लग सके। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी-शियान के एहतमाम से आज इमाम बारगाह बड़गाम, इमाम बारगाह हसनाबाद रहनेवाली और अंजुमन के तहत ज़ेर इंतज़ाम जुमे मराकिज़ पर यौम अली असगर अलैहिस्सलाम का इनकाद किया गया। इस दौरान उलमा ने शहदाए करबला की शहादत बयान की। मराकिज़ पर मजालिस अज़ा का भी एहतमाम हुआ। रखिया और बेमना श्रीनगर में रिहाइश पजीर लोगों ने आज बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों ने इंतजामिया से कहा कि कई साल पहले उन्हें डल से हटाकर यहाँ इन शराइत पर बसाया गया था कि इन्हें सड़क, पानी, बिजली, स्कूल और मौसर ड्रेनेज निज़ाम फराहम किया जाए, लेकिन मौजूदा वक्त तक इन वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि मुहर्रम उल हराम के अय्याम मुतबरका के दौरान बिजली की माकूल सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। ज़ेरहामा गुजरपति कपाड़ा के लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतल्लिका इलाके में गुज़श्ता दिनों बादल फटने के नतीजे में बिजली और पानी की सप्लाई में आने वाली खलल को फौरी तौर दूर करने के इकदाम करें और इसके अलावा सड़कों की मरम्मत का काम भी हाथ में लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर रानियल विक्रमसिंघे से मुख्तलिफ दोतरफा मामलात पर बातचीत की। मीटिंग के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत और श्रीलंका के दरमियान दोतरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर एक जैसे नजरियात हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 साल श्रीलंका के अवाम के साथ साथ भारत के लिए भी चैलेंज उभरा रहा है, क्योंकि श्रीलंका इक़्तिसादी बहरान में आ चुका था, लिहाजा पड़ोसी होने के नाते हमें भी वो हालात रास नहीं आ रहे। महकमे सियाहत के सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने आज मानसबल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज किया। फेस्टिवल के दौरान आबी खेल सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। इस फेस्टिवल में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए एथलीट और मकामी तलबा शिरकत कर रहे हैं। सेक्रेटरी सियाह डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने इस मौके पर कहा कि इस फेस्टिवल की बदौलत मानसबल में सियाहती सरगर्मियां अरूज पाएंगी और ज्यादा से ज्यादा सयाह यहां की तरफ राग़िब होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चंचल कुमार ने कल ज़ेड-मोड और जोजिला टनल प्रोजेक्टों पर हो रहे काम का जायजा लिया और अफसरान से ताकीद की कि वो इन प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। मैनेजिंग डायरेक्टर को तफसीलात देते हुए बताया गया कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर 77% काम मुकम्मल किया गया और बाकी मादा काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। कंगन के हटखनन इलाके में आज सुबह बादल फटने के एक वाक़े के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और इस वजह से पूरे इलाके में फसलों और मेवा बागात को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इसके अलावा राबिता सड़कें और कई छोटे पुल सैलाबी सूरत हाल की जद में आए और उनको भी नुकसान पहुंचा। वाक़े के फौरन बाद मकामी पुलिस, SDRF की टीमें और दीगर जिला हुकाम इलाके की तरफ रवाना किए गए और वो हालात का जायजा ले रहे हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अब्र आलूद रहने के अलावा पूंछ और राजौरी अजला के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाना से भारी दर्जे की बारिश, जबकि वादी और जम्मू के दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का यह भी कहना है कि पूंछ और राजौरी के पहाड़ी इलाकों और आबी ज़खायर के आसपास इस दौरान सैलाबी रैलों का भी खतरा बन सकता है, इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो ऐसी जगहों का रुख न करें जहां जमीन या पहाड़ी खिसकने या फिर किसी भी तरह के तूदे गिरने का खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वह मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आने वाले दिनों के दौरान नदी नालों और दरियाओं के आसपास बगैर किसी जरूरी काम के न जाए और जितना मुमकिन हो इन जगहों से परहेज किया जाए। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।